Hello dear students, I am Dr. Deepshikha Acharya, Professor, SIIT College Bhopal. In this video, I am going to explain about the Hall effect experiment to determine the Hall coefficient of semiconductor. So before start the performing of this experiment, let us start with the properties of Hall effect and what is Hall effect. So as you can see in this flex, when a current carrying metallic or semiconducting block placed in a magnetic field in the perpendicular direction, then due to the deflection of charges which are flow along the x direction, if the charges are applied along the x direction or current is applied along the x direction, they can deflect due to the presence of magnetic field, and due to this, along the third direction, which is perpendicular to both the fields, a new type of potential is developed, which is called Hall voltage. And because of this potential, and field is experienced, which is called Hall field. And the total experiment is known as Hall experiment. This is a very useful experiment to determine the various things, like I've already said, to determine the coefficient, which is useful to determine the concentration of charge carriers in a semiconductor or metallic block. It is also useful to determine the type of charge carriers, whether the electron or the hole for the semiconductor, and as well as the type of semiconductors. We can also determine the conductivity and mobility of the charge carriers by using this experiment. So let us start the performing of this experiment. In this experiment, there are four components. There are 3 meters. First, Gauss meter. Second, a current supply. And third, the current supply for electromagnet. To apply magnetic field, we are using electromagnet, and this electromagnetic is magnetized with the using of this current supply. So here I have already connected the current supply for the electromagnet with the power, and the Gauss meter I have also connected. Now we have 2 type of probes for this experiment. The first one is called Gauss probe. We connect this Gauss probe or hang this between the 2 poles of the electromagnet. If we see negative sign on the Gauss meter, that means we have to shift the direction of the Hall probe and have to adjust 0 on the device. So, dear students, here is the observation table for the power supply of the electromagnet and जो कि गॉस फील्ड जनरेट हो रही है उन दोनों के बीच में. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेटाइज करने के लिए यहाँ पर पावर सप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर अप्लाइंग सम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में प्लग जनरेट हो रहा है वो हम इसके थ्रू नोट डाउन करेंगे. सो स्टार्ट. यहाँ पर हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे अराउंड 0.5 एम्पियर ऑफ द करंट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कितना है, 0.9 वेवो पर मीटर स्क्वायर. देन अगेन हम इंक्रीज करेंगे 0.5 एम्पियर करंट, दैट मीन्स नाउ इट इज 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर करंट पर कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, 1.6. सिमिलरली ये एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते जाएंगे फॉर द 4 और 5 वैल्यूज. हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में इस गॉस प्रोब को रिप्रूव कर देंगे, क्योंकि हमारा जो बेसिक एक्सपेरिमेंट है वो फाइंड आउट करना है होल कोफिशिएंट फॉर द सेमीकंडक्टर, और हम इस गॉस प्रोब की जगह पर अब कनेक्ट करेंगे इस सेमीकंडक्टर को.
यहाँ पर ये एक सेमीकंडक्टर की चिप गिवन है। इस सेमीकंडक्टर की जो थिकनेस है वो यहाँ पर मेंशन है, थिकनेस 0.76 नैनोमीटर, विच इज यूजफुल ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। सो अब हम रिप्लेस करेंगे गॉस मीटर को। तो यहाँ पर हम इसको पावर ऑफ करेंगे, यहां से पॉज कर सकते हैं। हम गॉस मीटर की जगह पर अब हैंग करेंगे हमारा सेमीकंडक्टर। बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमें पता है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हमने 0.5 एम्पियर या 1 एम्पियर का करंट सप्लाई किया है तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। अब हमने उसे मैग्नेटिक पोल्स के बीच में तो रख ही दिया है। अकॉर्डिंग टू द हॉल एक्सपेरिमेंट या हॉल इफेक्ट, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑन द टू द परपेंडिकुलर ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने यहाँ पर हैंग कर दिया, और अब यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे इसको विद द करंट सप्लाई। यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे आउटपुट पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड इनपुट पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। देन हम यहाँ पर इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सेकेंड फेज पर, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर जनरेटेड वोल्टेज को नोट डाउन करेंगे। इसके लिए हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल करेंगे। यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन टेबल में 2 कंपोनेंट नोट डाउन करने हैं, होल करंट एंड होल वोल्टेज। होल करंट यहाँ पर इस मीटर के थ्रू हम देखेंगे और वोल्टेज को इस मीटर के थ्रू हम नोट डाउन करेंगे। यहाँ से हम करंट को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है 1 एम्पियर के लिए। 1 एम्पियर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी हमारी? 1.6। सो यहाँ पर हम बढ़ाएंगे करंट, और करंट की वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.5 मिली एम्पियर। 0.5 मिली एम्पियर का करंट सप्लाई करने पर यहाँ पर कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है? ये भी मिली वोल्ट का हमारा मीटर है। कितना हो रहा है? 004 मिली वोल्ट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद हम अगेन वैल्यू बढ़ाएंगे और इस वैल्यू को स्विच करेंगे 0.5 के डिस्टेंस के बाद, यानी कि 1 मिली एम्पियर पर। 1 मिली एम्पियर पर 9 मिली वोल्ट का करंट जनरेट हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट हम आगे प्रोसीड करेंगे आगे की रीडिंग्स के लिए। लाइक ऑन 1.5 मिली एम्पियर 14 मिली वोल्ट का करंट जनरेट हो रहा है। ऑन 2 मिली एम्पियर 18 मिली ओम 18 मिली वोल्ट करंट जनरेट हो रहा है, सॉरी वोल्टेज जनरेट हो रहा है। एंड 2.5 मिली एम्पेयर पर 23 मिली वोल्ट का वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। लास्ट रीडिंग हम नोट डाउन कर लेते हैं ऑन 3 मिली एम्पेयर। आप चाहें तो रेंज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो इन दिस टेबल हमने सभी रीडिंग्स नोट डाउन करनी। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड फेज की, जो है कैलकुलेशन फेज। कैलकुलेशंस के लिए हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करना है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द होल कोफिशिएंट, इट इज T, विच इज द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन। इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी पहले, 0.76 नैनोमीटर। मैग्नेटिक फील्ड यहां अभी मैंने जो कांस्टेंट ली है वो है 1 एम्पियर के करंट के लिए 1.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। Ix की वैल्यू हमारी हर बार वेरी हो रही है, एंड सिमिलरली वोल्टेज की वैल्यू भी हमारी हर बार वेरी हो रही है। तो RH की वैल्यू हम इन सारे पैरामीटर्स पर, इन सारी जो हमने नोट डाउन की रीडिंग्स उस पर नोट डाउन करेंगे। उसके बाद कैलकुलेटेड वैल्यूज का एवरेज लेंगे और रिजल्टेंट RH यानी कि होल कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू हॉल इफेक्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ होल कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर। थैंक यू स्टूडेंट।